A very good morning to all the students of class 9. I hope everyone is doing great and everyone is keeping fine. So in the last class we have discussed about the last point of arguments for democracy, or why democracy is best form of government. We have discussed in the last class. So we will be dealing on the new topic today. That is broader meaning of democracy. Broader meaning of democracy I can explain you in brief. Means I think no need of going detail also about this last topic, broader meaning of democracy. But we'll see, means we'll try to go in detail. Then in the last class we have discussed that democracy allows us to correct its own mistake. Democracy provides us to correct its own mistake. How we have seen that in democracy, in any democratic country, if the rulers make mistake, there is a separate room for discussion about that mistake, and she can correct her own mistake. The ruler can correct his own mistake by having discussion. And we can also see that in any democratic country, if the ruler doesn't change his statement or his stand, the people can change the ruler. So that's why we consider democracy as a better form of government. Or the rulers can be changed. The rulers have to change their decision, or the rulers can be changed. तो डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, अगर रूलर अपना स्टेटमेंट नहीं बदलता है जो लोगों का खिलाफ है, which is against the people or citizen, तो लोग रूलर्स को ही बदल सकता है डेमोक्रेसी में. So let's see broader meaning of democracy. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. और इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी का बारे में लिमिटेड वे देखा है. मैंने जैसे बोला है आप लोगों को ओनली 4 फीचर्स डील किया है. बहुत सारा फीचर्स है डेमोक्रेसी का, तो हम लोग लिमिटेड वे देखा है एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस देखा है डेमोक्रेसी का. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी हैज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हम लोग समझ चुका है डेमोक्रेसी हैज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम लोग अंडरस्टूड हो चुका है ऑलरेडी. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. और ऐसा हम लोग जो डेमोक्रेसी को यहाँ डिफाइन किया है वो हम लोगों को बहुत कम डेमोक्रेसी का फीचर्स जानने को मिला है यहाँ विद एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग 4 फीचर्स को डील किया है, मिनिमल फीचर्स देखा है हम लोग. The most common form that democracy takes place in our times is that of a representative democracy. और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हम लोगों का टाइम्स में अभी देखने को मिल रहा है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोग अपना रूलर को चुनता है और ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल वो रूलर जाके डिसीजन लेता है असेंबली में. देन You have already read about this in the previous class. आप लोग ये मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले भी. मीन्स इवन we have studied in class 8 also. In the countries we call democracy, all the people do not rule. और जो भी countries हम लोग जो डेमोक्रेसी बोलता है उसमें सब लोग रूल नहीं करता है, सब लोग रूल नहीं करता है. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. तो उसमें सब लोग रूल नहीं करता है, जो मेजोरिटी है वो लोग डिसीजन लेता है on behalf of all the people. डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो मेजोरिटी है वो लोग डिसीजन लेता है on behalf of all the citizen. Even the majority does not rule directly. और मेजोरिटी जो है किसी भी डेमोक्रेटिक देश में वो लोग भी डायरेक्टली रूल नहीं करता है. The majority of people rule through their elected representative. और मेजोरिटी पीपल लोग रूल करता है through their elected representative, जो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जैसे चुनता है. इसी से हम लोग इसी के द्वारा से मेजॉरिटी पीपल लोग
द्वारा से हम लोग रूल करता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज हम लोग अपना लीडर को चुनता है, वो जाके असेंबली में हम लोगों का बिहाफ में डिसीजन लेता है। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत नेसेसरी हो चुका है प्रेजेंट सिनेरियो में, बिकॉज द फर्स्ट रीजन इज modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये बहुत लोगों को इन्वॉल्व करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करता है, तो वो लोग फिजिकली मीन्स आके डिस्कशन करके डिसीजन नहीं ले सकता है। पूरा इंडिया का 1.21 बिलियन पीपल लोग एक बार से इकट्ठा करके डिसीजन नहीं ले सकता है, फिजिकली आके वो लोग डिस्कशन करके डिसीजन नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज़ कर रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारा लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा से हम लोग अपना लीडर चुनेगा और वो लीडर जाके हम लोगों का बिहाफ में डिसीजन लेगा असेंबली में। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पूरा लोग आके डिसीजन नहीं कर सकता है, फिजिकली मीन्स अटेंड करके हम लोग डिसीजन नहीं कर सकता है। Number 2, even if they could, the citizen does not have time, the desire or the skills to take part in all the decision. अगर सब 1.21 बिलियन इकट्ठा भी हो गया, लेकिन लोगों के पास, सिटीजन के पास टाइम नहीं है, या वो लोग चाहता नहीं है, या उन लोगों के पास स्किल नहीं है। Okay, so that's why, because most of the people they don't have time for discussion, or they don't have desire for discussion, or they don't have knowledge or skills about the decision making. So that's why representative democracy is taking place in our times because of these issues, because सब लोग के पास टाइम नहीं है एक बार से आके इकट्ठा करके डिसीजन लेने के लिए या डिस्कस करने, और कुछ लोग डिज़ायर नहीं है मीन्स चाहता नहीं है ऐसा डिस्कस करने के लिए, और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, और कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत मशहूर हो रहा है हम लोगों का ये रिसेंट टाइम्स में। दिस गिव अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का बारे में हम लोगों को क्लियर करता है, लेकिन बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होता है हम लोगों को। ये सारा सब देख के हम लोग डेमोक्रेसी का बारे में क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी का बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है, ये सारा देखने के बाद भी। This clarity help us to distinguish democracy from non-democratic democracies, और ये हम लोगों को ये जो क्लैरिटी है ये हम लोगों को मीन्स पूरा पिक्चर दिखाते हैं, या फुल क्लैरिटी के साथ हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकता है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को, ये सारा डिफिनेशन कॉन्सेप्ट को देख के। But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. लेकिन हम लोगों को मीन्स इसी से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा अबाउट डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी का डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन को देख के। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government, क्योंकि हम लोगों को मीन्स जो डेमोक्रेसी है उसका ऑपरेशन सिर्फ गवर्नमेंट का बारे में ही बताता है, डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक ही बताता है, इसीलिए हम लोगों को इतना डेमोक्रेसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है ये सारा कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी, क्योंकि डेमोक्रेसी का बारे में ज़्यादातर गवर्नमेंट पर आके सर्कल हो जाता है, या
गवर्नमेंट का बारे में ज़्यादातर बताता है डेमोक्रेसी, और बियॉन्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी बाहर डेमोक्रेसी यूज़ होता है, लेकिन उसका बारे में कम जानने को मिलता है हम लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट देखने के बाद। Then for this we need to turn to a broader meaning of democracy, और हम लोगों को बियॉन्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी और डेमोक्रेसी को और अलग फील्ड में डेमोक्रेसी कहाँ अप्लाई होता है उसको जानने के लिए हम लोगों को ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को देखना पड़ेगा, तब हम लोगों को मालूम होगा कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सिर्फ गवर्नमेंट में अकेला अप्लाई नहीं होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड गवर्नमेंट भी अप्लाई होता है। लेट्स सी, समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, और हम लोग मीन्स समटाइम्स हम लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है डेमोक्रेसी को। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रीड करके हम लोग मालूम हो जाएगा डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। नंबर 1, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, और एक बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. तो एक डेमोक्रेटिक, यहाँ एक डेमोक्रेटिक फैमिली का एग्जांपल दिया है जिसमें जो भी घर का डिसीजन लेना चाहता है वो सब लोग बैठ के डिस्कशन करके मीन्स अपना खुद का ओपिनियन देके एक अच्छा वाला डिसीजन लेता है। तो एक डेमोक्रेटिक फैमिली का एग्जांपल दिया है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो सिस्टम है वो बियॉन्ड गवर्नमेंट भी काम करता है डेमोक्रेसी। दैट इज इवन इन द फैमिली लाइफ ऑल्सो डेमोक्रेसी यूज होता है। दैट मीन्स जहाँ पर जो फैमिली पर सब लोग घर का बैठ के डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है तो उसको डेमोक्रेटिक फैमिली बोल सकता है हम लोग। जैसा कि एक डेमोक्रेटिक फैमिली में उसका सब लोगों का जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर होता है। उसका पापा का ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मम्मी का भी, बेटा का भी, सबका, जो डेमोक्रेटिक फैमिली में ऐसा डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल, तो बियॉन्ड गवर्नमेंट, बियॉन्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फैमिली लाइफ में भी काम करता है डेमोक्रेसी। दैट इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. तो यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मीन्स एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हम टीचर्स, ऐसा टीचर्स को पसंद नहीं करता है जो स्टूडेंट को क्लास में अलाउ नहीं करता है क्वेश्चन अराइज करने के लिए। I would like to have a teacher with democratic temperament. तो इवन मीन्स हम लोगों को मीन्स स्कूल में भी अप्लाई होता है, इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई होता है डेमोक्रेसी। दैट मीन्स इवन जहाँ पर स्टूडेंट लोगों को क्वेश्चन अराइज करना नहीं देता है, जहाँ पर सिर्फ टीचर्स अपना रोल चलाता है, वो एक डेमोक्रेटिक मीन्स एक ऑटोक्रेटिक जैसा सिस्टम हो जाता है। लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट लोगों को फ्री विल क्वेश्चन आस्क करना देता है और जो अच्छा टेम्परमेंट है टीचर जो क्वेश्चन अराइज करना देता है, तो जब वो ऐसा होता है इंस्टीट्यूशन में तो वहाँ डेमोक्रेटिक अप्लाई हो रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग अभी अंडरस्टैंड कर रहा है डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट भी काम करता है बोल के, इवन इंस्टीट्यूशन में भी काम हो रहा है डेमोक्रेसी का। देन नंबर 3, one leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? अगर कोई भी पार्टी में एक ही फैमिली मेंबर का और लीडर डिसाइड करता है सब कुछ, तो हम लोग डेमोक्रेसी कैसा डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकता है। डेमोक्रेसी ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें सब लोगों का ओपिनियन सब लोगों का ओपिनियन सुनता है, डिस्कशन करता है, इसके बाद डिसीजन लेता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी अप्लाई होता है बियॉन्ड गवर्नमेंट भी। दैट मीन्स फैमिली लाइफ में भी अप्लाई होता है एंड इवन इन इंस्टीट्यूशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में अप्लाई होता है डेमोक्रेसी। तो हम लोग यही ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग
यही अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ की डेमोक्रेसी मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट अकेला में अप्लाई नहीं होता है। जितना भी हम लोग अभी तक स्टडी किया है डेमोक्रेसी का बारे में, सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम का बारे में डील किया है डेमोक्रेसी को। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे